आई वॉज बॉर्न एज अ बॉय, लेकिन मेरी जो फीलिंग थी वो एक लड़की वाली थी। अब हम गाली गलौज, सीटियों और लोगों के मजाक से तंग आ चुके हैं। हमें भी आपकी तरह मुआशरे में जीने का हक है। 2% ट्रांसजेंडर लोग अपनी बायोलॉजिकल फैमिली के साथ रहे। सम एक्सेप्शंस हु वुड से कि ओ ये हमारे मजहब के अगेंस्ट है। Did you ever have to face abuse अपने life में? I got hounded by a group of boys who started calling me Shikhandi. I also tried to kill myself. I am yet to meet a trans person जिसने कहा कि उनको कभी डिप्रेशन नहीं हुआ। किन्नर का जन्म जो होता है बहुत ही बुरा होता है और किन्नर की ज़िंदगी में बिल्कुल सुकून नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी से बड़े परेशान रहते हैं। डिफरेंस है गे बच्चों में और ट्रांसजेंडर बच्चों में, बिकॉज वेदर यू आर गे और लेस्बियन ये आपको समझ में आता है जब पोस्ट प्यूबर्टी। इतनी जो ये शर्म अटैच्ड है, ऐसा क्यों है? आप ब्यूटिशियन बन जाओ, यू नो, आप डांसर बन जाओ, आप ये कर लो, लेकिन वहीं आप अगर वो आपके टीचर बन जाते हैं तो क्या आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? वो आपके डॉक्टर बन जाते हैं, यू नो, क्या वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो आप एक्सेप्ट करेंगे? इन माई एंटायर 12 years of schools I didn't have even a single friend. A homosexual person or a transgender gay person, उसको यही किताब में पढ़ना है कि I am a mentally diseased person, I am a criminal, I am a pervert, and write that in the exam paper. I mean, how horrific that. लोग चलते हुए भी छेड़ते हैं, चल रही है क्या 10 रुपए में दे दे, 20 रुपए में दे। मेरे साथ डॉक्टर्स पढ़ रहे थे, उनको मैं कैसे बताऊं, तो मैंने उनको चिट्ठी लिख लिख के उनकी टेक्स्ट बुक्स में छोड़ दिया। गाइनी ओपीडी में अगर ट्रांसजेंडर मैन जाता है बिकॉज दे वर यूट्रस तो दे आर गोइंग टू गाइनी ओपीडी, लेकिन हमें लगता है गाइनी ओपीडी में मरीज तो सिर्फ फीमेल ही हो सकती है। चाहे जितनी भी मुश्किल हो, लाइफ इज वर्थ लिविंग। तो कितनी अच्छी है, प्यारी प्यारी। Hello and welcome to TDM Manthan. Today we have a very special guest with us. It's hard to guess, but I'm sure when you finally know, you'll be very happy and very surprised also. So we have with us Dr. Aqsa Sheikh. She is the first and one of the very few transgender doctors we have in India. She is a transgender rights activist and an out and proud trans woman. She's a professor of community medicine at the Jamia Hamdard Institute of Medical Sciences and Research. Today we will dive deep into her life, her journey, and how she fought so many societal barriers to be here, to be what she is. Let's welcome Dr. Aqsa Sheikh. Thank you so much. It's my pleasure to be on this podcast. I'm so glad you said that. So how are you today, and how's college? I'm doing great, and apart from the pollution in the city, Right. but otherwise everything is great, and yeah, enjoying my Sunday, and it was lovely to drive from Delhi to Noida and Yes. come and meet you. That's nice. That's a nice thing somebody has said about coming to Noida. I've stayed in Noida, so I'm a bit nostalgic about it. Oh, can somebody be nostalgic about Noida? I thought Yes. Delhi, because I am from Delhi, so I'm like, okay, Delhi is Delhi. Yeah. Nothing can ever match. Well, one can being be in nostalgic about both the places. Okay. Yeah. So when we talk about nostalgia, I have to ask you, since you grew up in Mumbai, right? Yes, Bombay, Bombay. not Mumbai. It was Bombay then. It was Bombay then. तो बॉम्बे और दिल्ली और नोएडा, मतलब दो बिल्कुल अलग वर्ल्ड्स हैं ये। Agreed. आप वहीं पे पढ़ाई करी और मेडिकल एजुकेशन भी वहीं से किया, एंड नाउ यू आर इन दिल्ली. सो हाउ वाज इट लिविंग इन मुंबई फॉर यू? I felt I was living in a Bollywood film when I was in Bombay, because you know I was born in a place in Bombay जो कि old Bombay का बिल्कुल area है, and to grow up and to look at that society around you where
you are in a mohalla. I was living in a chawl system over there, which is a very classic Bombay phenomenon of housing. And we had Kamatipura in front of us, which is the red light area of Bombay. This is the same, sorry to interrupt, the one we saw in Gangubai, the movie. Yes. Yeah. Alia Bhatt's movie. Yes, Oh. and it's the place where you have beaches. You also had gangsters. You had Quite. old Bollywood theaters. So I mean, this was like a very highly sensorily exciting place to be in. It is. So that was the Bombay I was born and grew up in. Of course, then I shifted to the suburbs of the Bombay, and during that time, I used to travel a lot by train because my college was in the southern part of Bombay, and I used to stay in the northern part. So वो जो ट्रेन का सफ़र था उसमें ऐसा लगता था जैसे बहुत सारी फिल्म्स चल रही हैं आपके आसपास. लोग इतने सारे हैं बॉम्बे में, हर एक की एक अपनी कहानी है. राइट फ्रॉम द पीपल हु आर बेगिंग इन द ट्रेन्स टू पीपल हु आर गोइंग टू देयर जॉब्स टू पीपल हु आर लिविंग ऑन ट्रैक्स टू द पेशेंट्स हु आर कमिंग इन द हॉस्पिटल. मतलब इतनी सारी कहानियाँ चल रही हैं. तो छोटे छोटे कहानी अलग अलग. In fact, that inspired me to write my short story collection also in Bombay. So yeah, I mean, that was that city, but then I was very lonely also, in that place. But I think that loneliness gives you a perspective to observe silently. जो शायद कुछ lonely लोग ही कर पाते हैं, and for that I am grateful for that loneliness because that gave me a lot of opportunity to silently observe the world around me and to understand life. When I came to Delhi, I decided to come to Delhi because ये एक अनजान शहर है मेरे लिए. Oh, so We you were- had no yeah. family, friends, nothing in Delhi. And I wanted to escape everyone and come. So I chose a place जहाँ मुझे कोई न जानता हो. Okay, that's how और you came to उसमें भी Jamia. I came to Noida. No, I came to Noida. Not I was to Delhi. working in Noida for 2-3 years before I went to Delhi. And Noida एक ऐसा शहर है जिसमें शायद अनजान होना और ज़्यादा आसान बना देता है वो आपको. So for me Noida from Bombay of course was a drastic shift, but it symbolized freedom to be myself. To be in a world where no one knew me, and therefore I wasn't carrying that baggage of the past to act in a way that I've been acting all my life. So that way I'm very grateful for this journey that I've done. You said 3 very important things in this. I mean, other stuff also. Loneliness, you had to escape, and that finding one's freedom to be. That nobody is kind of judging you. कोई भी आपको किसी तरह से ऐसे देख नहीं रहा है, and you are like अपने लाइफ अपने तरह से जीनी. So did that loneliness come from being different from others? I think the loneliness came mostly from not being able to figure out certain questions about myself. Like? So even if I wasn't like very different from others in many other aspects, of course I was different in terms of my gender identity and my behavior, etc. But there were unanswered questions which no one else was asking. I was asking them to myself, like, who am I? What's my gender identity? Because I was born as a boy. लेकिन मेरी जो feeling थी वो एक लड़की वाली थी. And I was also getting attracted to other men. Oh. So I was like thoroughly confused कि am I a gay man, am I a trans person, am I a hijra, and वो terminology हमारे पास नहीं थी उस वक्त, कि transgender कौन होते हैं और क्या होते हैं. जो media representation है वो भी बहुत ही एक किस्म से एक caricaturish कर देता है characters को. तो उन सब के बीच में वो एक मंथन जो है ना आपके अंदर चल रहा होता है. that you cannot talk about it with anyone, and even if you try कि आप किसी से बात कर लो तो वो समझ नहीं पाते हैं या वो comfortable नहीं होते हैं इसको लेकर के, या आपको एक backlash वहाँ से मिल जाता है. So then कहीं ना कहीं बस आप अपने आप में ही उन सवालों को मतलब टटोल रहे होते हो, उनके जवाब ढूंढ रहे होते हो. And that is what I mean by that solitude which I had, where I was with myself. क्या उम्र थी आपकी तब when these questions started coming to you?
You know, I think I have been a thinker right from being the toddler age. Okay, So toddlers like I 3, 4. think you know, I started understanding my gender right when I was 3 years old. How was that? ये कैसे हुआ? मतलब कोई सो एज अ example? चाइल्ड यू नो, जब आप छोटे होते हो 3 साल 4 साल के बच्चे, तभी कहीं ना कहीं जेंडर का एहसास आपको होने लगता है कि आप एक लड़का हो एक लड़की हो. द पीपल यू आर प्लेइंग विद, सो आई यूज टू ओनली प्रीफर प्लेइंग विद अदर गर्ल्स बिकॉज आई वॉज कम्फर्टेबल यू नो बींग विद दैम. जो रोल प्लेज होते हैं उसमें आप यू नो एक महिला का किरदार निभाना चाहते हैं. Oh. तो कहीं ना कहीं उस वक्त आप देखते हो कि जो दूसरे लड़के हैं वो तो क्रिकेट खेल रहे हैं या वो एक किस्म की बात कर रहे हैं या उनका बॉडी लैंग्वेज ऐसा है. मेरे इंटरेस्ट या मेरी जो समझ है अपने बारे में वो ऐसी क्यों है. सो दोज आर द टाइम्स व्हेन यू स्टार्ट यू नो having those questions, and of course in the second decade of my life it became even more pronounced, more prominent, and especially when I entered the medical college. It was then, and during the teenage years also. Yeah, Tab, yeah. you know. So I entered the medical college as a 17-year-old. You're still a teenager. So yeah, and I think that was the phase, you know, because you are like literally thrown into the world. स्कूल में आप एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हो, कम लोगों से इंट्रैक्शन होता है, बट वंस यू आउट इन अ हॉस्पिटल स्पेशली देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल एवरी डे एंड यू ऑब्जर्व सो मच, यू सी सो मच सफरिंग, लॉस, इवन हैप्पीनेस, कि वो आपको सोचने पे मजबूर कर ही देता है कि यू नो आप कहाँ हो. हर कोई इस रेस में भाग रहा है, आप कहाँ हो, और आप भागना भी चाह रहे हो तो किस लाइन में भागे. वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट. Yeah. बिकॉज यू नो अभी हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं स्कूल के बारे में. तो जब आप छोटे थे एंड यू स्टार्टेड फीलिंग लाइक अ गर्ल, तो उसमें आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? डिड दे सपोर्ट यू जब थोड़ा पता लगा उनको कि ये बिल्कुल ही नहीं उस तरह से रहना चाहते हैं, नो एज अ बॉय, नहीं, शी इज़ नॉट ग्रोइंग अप एज अ बॉय, तो उनका क्या रिएक्शन था उसमें? So, you know, Vatsala, I was actually in an all-boys school. Oh, So you can understand the adventure it is an which was adventure. there in an all-boys school. And This was a boarding. no, this was Okay. a day school only. And उस स्कूल में भी फिर ये होता था कि यू नो आई यूज टू लाइक, आई वॉज अ वेरी साइलेंट ओबीडियंट काइंड ऑफ बच्चा. And that was considered my good nature, but they didn't understand that I was actually a very lonely child who was not able to talk to anyone, because when I used to come back home I had those girls who were my friends, but school mein there were no friends. In my Because they entire were all boys. 12 years of schools I didn't have even a single friend. Really? Yeah, I know. Even it surprises me now that how did I survive those times. But yeah, that was the So didn't the situation. teachers notice that you know this kid, ये बच्चा बात नहीं कर रहा है, या ये किसी के साथ lunch share नहीं कर रहा है, या I think खेल नहीं teachers रहा है? को कहीं ना कहीं वो उस तरह से नहीं सेंसिटाइज किया गया था उस ज़माने में. आज के टीचर्स शायद इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से नोट कर पाए, बट एट दैट टाइम यू नो इट्स कंसिडर्ड कि हाँ ये बच्चा शरीफ है, ये बच्चा ओबीडियंट है, ये बच्चा पढ़ाई में ही मन लगा रहा है, कि रिसेस में भी क्लास में ही बैठा हुआ है, बाकी बच्चों के साथ जाके खेल नहीं रहा है. और यू नो दोज आर द काइंड्स, इसको एक अच्छे नज़रिए से देख करके हम नज़रअंदाज ही भी कर देते हैं कहीं ना कहीं. So that used to happen, and unfortunately in my entire childhood I never spoke about my experiences with my family. And Not even once. Not even once. Not even once. I only spoke to them for the first time when I was in medical college. That is much Too late. later, no? Too Yeah. late. So, but then when I look back at that time and I, you know, try to ask myself, ki why was I not talking to them about it, is because there was a lot of subtle messages that I was receiving from my family that you have to act more manly. Like a boy. Like if you're a boy, You know, have to that be go like and a play boy. cricket or you know do this do that. तो आपको एक कहीं ना कहीं वो मैनहुड की तरफ जब पुश किया जा रहा होता है इतना, तो आपको समझ में आ जाता है कि इनसे नहीं बात कर सकते हम. You know, इनको बोलेंगे तो शायद और बैकलैश मिलेगा. बिकॉज सी एज अ ट्रांस पर्सन व्हेन यू आर एक्टिंग लाइक अ गर्ल, इट्स वेरी ऑब्वियस टू एवरीवन.
Right. People may be living in denial by saying नहीं नहीं नहीं, you know, ऐसे बहुत लोग होते हैं and all that, but it is all visible. It's just that no one is talking about it, And they don't want to. and it is very sad that the pressure of talking is on the person. कि आप खुद ही जाके अपना पॉइंट बोले, रखें. जबकि I think as the adults who are in the life of this child are the ones who actually have a bit of more, but you know, कहीं ना कहीं हम उसे अपने blind spot में रखना चाहते हैं, so it happens that people tend to kind of ignore. So even my teachers or you know my family members or neighbors, they would pass those remarks, But they never tried to talk to you. but no one will sit down and talk, and I think that's the phenomenon across the board in India. Is it? है ना, अगर आप अपने बच्चे अडल्ट चिल्ड्रन को भी देखते हैं कि अगर यू नो यार हम उनके ऊपर शायद पैसिव एग्रेशन कर लेंगे, डांट लेंगे किस तरह, लेकिन बैठ के हमारी फैमिलीज में किसी मुद्दे को फेस टू फेस बात करने का कल्चर हमने बनाया ही नहीं है. पहले तो बहुत ही कम था, रेयर. अब फिर भी होने लगा है Yeah. कि पेरेंट्स ऑफ टुडेज पेरेंट्स फिर भी थोड़ा अपने Yes. बच्चों से बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस और इतना, पर उस समय में आई कांट इवन आजकल ऐसा हो गया कि पेरेंट्स बात करना चाह रहे हैं, बच्चे बात नहीं कर रहे. यू नो, यू हैव टू बेसिकली स्टॉक देम ऑन सोशल मीडिया टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग इन देयर लाइफ. बिकॉज आपने जैसे बोला ना कि उन्होंने कभी बात ही नहीं करी, तो ऐसे होता नहीं, एक बच्चा है वो बड़ा हो रहा है, सो मेनी इमोशंस, सो मेनी फीलिंग्स वन हैज, Yeah. कि कभी आप रोने लग गए, कभी एकदम ही ब्रेक डाउन हो गए, या कि कोई बात नहीं कर रहा, एंड दिस लोनलीनेस की स्कूल में कोई दोस्त नहीं है, तो पेरेंट्स तो ये जानते ही होंगे. Were they aware of this fact? Everyone was aware, you know, But even including then- my batchmates, including my school teachers, they were observant. ऐसा नहीं है, बट कहीं ना कहीं उसको एक ना कि अच्छे बच्चे वाला बिहेवियर कह के या ये कह के कि अरे बचपन में होता है, एंड यू नो टू साइट अ कपल ऑफ एग्जाम्पल जहाँ उनका बच्चा ऐसे थोड़ा गर्लिश था, लेकिन देखो बाद में उसकी शादी हो गई, बस यू नो, शादी या is बाद the- में वो नॉर्मल वाला टैग की नॉर्मल हो गए. तो ये इस तरह से हम लोग सोचते हैं कि ठीक है, यू नो, बच्चे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, एक्सप्लोर कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर सेक्सुअलिटी एंड जेंडर, एंड इट्स अ फेज एंड ठीक हो जाएगा, यू नो, और कुछ नहीं तो शादी करा देंगे तो ठीक ही हो जाएगा, बिकॉज दैट्स द यू नो वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग. Right. So but people don't want to sit down and talk about it, at least they weren't that open, you know, in those times. बैठ के बात करना इज लाइक बेसिक, वो करना बहुत ज़रूरी है ये. And that is why, you know, when I talk about transgender rights now at this stage of my life, my focus is not more on the adults, my focus is on the children. Because देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है गे बच्चों में और ट्रांसजेंडर बच्चों में. बिकॉज वेदर यू आर गे और लेस्बियन, ये आपको समझ में आता है जब पोस्ट प्यूबर्टी, यू नो, जब आपका सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड्स अ पर्सन स्टार्ट हो Teenage जाता है. में बेसिकली. Yeah. जबकि जो ट्रांसजेंडर बच्चे हैं उनकी जेंडर आइडेंटिटी का एहसास तो 3 साल 4 साल की उम्र में आ जाता है, एंड दे आर दी वंस हु आर मोर वल्नरेबल, यू नो, इट्स मोर एनकम्पसिंग कि आपके हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में है. इट्स नॉट ओनली अबाउट हु यू लाइक और लव और हैव सेक्स विथ, एंड दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ सपोर्ट ना. कई बार फैमिली सपोर्ट करना चाहती हैं तो उन्हें नहीं पता कैसे बात करें, कैसे हेल्प करें बच्चे की, लोग क्या कहेंगे बाकी, या टीचर्स को नहीं समझ में आता कि वो कितना इंटरवीन कर सकती हैं, पॉलिटिशियंस को समझ में नहीं आ रहा है कि वो तो क्या अभी भी किस नहीं दिशा में हमें जाना चाहिए, यू नो. सो बट द चाइल्ड इज लेफ्ट अलोन, एंड दैट इज व्हाई इफ यू लुक एट द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इन ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन, आई एम येट टू मेट अ ट्रांस पर्सन जिसने कहा हो कि उनको कभी डिप्रेशन नहीं हुआ या उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया या यू नो उस किस्म के ख्यालात उनको नहीं आए बीइंग इन इंडिया, बिकॉज इतने लेवल का प्रेशर वो झेल रहे होते हैं. नो वन अंडरस्टैंड्स देम, यू नो, स्पेशली दोज हु आर इन द प्री इंटरनेट स्टेज, राइट. जो जहाँ आपके पास कोई right. सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको लगता है हम ही ऐसे हैं बस और कोई है ही नहीं दुनिया में, आपको क्योंकि हमें कोई मालूम दिख ही नहीं नहीं रहा है, कोई दिख भी नहीं रहा है. तो इसमें पेरेंट्स, जैसे इवन आपके केस में पेरेंट्स इमोशनली अवेलेबल नहीं है बच्चे के साथ. They're available emotionally, but you know, in the gender that they have assigned as a boy. एंड दे डिडंट, As a girl, वो yeah. एक्सेप्ट करना भी नहीं चाहते हैं कि नहीं ये नहीं है, मतलब लाइक अ बॉय, वो फैक्ट उन्होंने एक्सेप्ट किया नहीं है. And I think you know, I don't want to blame parents, and I always say this कि they see वो भी अपने बच्चे से प्रेम तो करती हैं,
कोई दुश्मन तो है नहीं. इनफैक्ट सबसे ज़्यादा शायद कोई करता होगा तो वो पेरेंट्स ही करते होंगे. बट दे आर हेल्पलेस इन दिस सोसाइटी, यू नो, क्योंकि कहीं भी उनके पास ऐसे रोल मॉडल्स नहीं हैं ऑफ अदर पेरेंट्स हु हैव सपोर्टेड देयर ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन. इनफैक्ट इवन टुडे ऐसे रोल मॉडल्स मिलना बड़े मुश्किल हैं. आपको वो रोल मॉडल ज़रूर मिल जाएंगे जिन्होंने अपने ट्रांसजेंडर बच्चों को निकाल दिया. घर से बाहर या फिर किसी आई और मीन देयर वाज अ सर्वे जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने किया था पब्लिश, जो कहता है कि सिर्फ 2% ट्रांसजेंडर लोग अपनी बायोलॉजिकल फैमिली के साथ रह रहे हैं बचपन से, एट द टाइम व्हेन द सर्वे वाज डन. लाइक व्हेन दे वर किड्स, यंग पीपल, दे वर यंगर. ओके, तो वो बिकॉज उतना पहले घर से 98% या निकल तो गए. घर छोड़ देते हैं या उनको घर से निकाल दिया जाता है. एंड कुछ हैं जो हिजड़े घरानों में जाके एसिमुलेट हो जाते हैं, कुछ अपना अकेले रह रहे हैं, कुछ किसी फ्रेंड के साथ रह रहे हैं. सो बट द पेरेंट्स दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ हेल्पलेस बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू रेयर चिल्ड्रन. तो ये बहुत ही सिसजेंडर बच्चे पालना ही बड़ा चैलेंज है. क्योंकि ऊपर से ट्रांस बच्चे तो और मुश्किल है. पर ये बहुत ही एक सैड सिनेरियो Yeah. बोलेंगे कि एक छोटा, स्पेशली व्हेन यू आर अ चाइल्ड, एक बच्चा जो एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है, स्कूल जा सकता है, पढ़ाई कर सकता है, खेल सकता है नॉर्मल, उसको इतना लोनलीनेस, इतना आइसोलेशन और इतना अब्यूज़ भी मे बी Yeah. मतलब सहना पड़ रहा है इवन जब इतने छोटे उम्र से. तो इसको आपने भी फेस किया है इन अदर लाइक वेज. और व्हेन फिर फाइनली आपके पेरेंट्स क्या करते थे उस टाइम पे, मतलब व्हाट वाज My father was an electrician and my mother was a housewife. She's illiterate. And वो दोनों जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनके लिए एक ट्रांसजेंडर बच्चे को हैंडल करना बहुत बड़ा चैलेंज था. बिकॉज दे हैव बीन टोल्ड कि ऐसे ही होता है इस समाज में. एंड दे वर समवन हु आर वेरी कॉन्शियस ऑफ द सोसाइटी. तो वो लोग क्या कहेंगे वाला जो टैग है वो बहुत बड़ा था उनके लिए. क्योंकि दे वर लाइक इफ दे डोंट रेज देयर चिल्ड्रन प्रॉपरली देन दे विल बी क्वेश्चन्ड. सो वो टैग है. तो कहीं ना कहीं अगर अपने बच्चे से प्रेम है भी और बच्चे के लिए कुछ करना भी चाह रहे हैं तो वो एक ख्याल आ जाता है लेकिन लोग क्या कहेंगे. And that was in fact one of the reasons why I decided not to be in Bombay where all the family, relatives and other people were there. सब जो आपको जानते हो. जानते हैं. तो आपने जो ये बताया ना कि बॉम्बे इतना ज़्यादा एक तो कलरफुल एरिया है उसमें, वहाँ जहाँ पे आप रहते थे, तो फाइनली व्हेन यू वेंट टू कॉलेज, तो जैसे स्कूल में किसी को ऑफ कोर्स उतना नहीं पता चला, बट व्हेन यू ग्रो अप तब यू हैव फ्रेंड्स, और भी पूरा एक मेडिकल कॉलेजेस में, पूरे हॉस्पिटल में जैसे आपने बोला लोग होते हैं, तो वहाँ पे एक्सेप्टेंस का ये जो इशू है, और पहले उससे पहले कि व्हेन आपने कब खुद को एक्सेप्ट किया, ऑल दोज क्वेश्चंस जो आप अपने आप से करे थे, वो आपने खुद को कब वो एक्सेप्टेंस दिया कि यस आई एम दिस. आई थिंक सो हम बात कर रहे हैं 2002-2003 की, यानी आज से लगभग 22-23 साल पहले. एंड उस वक्त इसके बारे में कुछ ऐसा था नहीं कि जो हम पढ़ सकें बहुत ओपनली, या द जर्नलिस्ट weren't राइटिंग अबाउट इट. देयर वर नो सेंसिटिव पोर्ट्रेयल्स ऑफ सच कैरेक्टर्स. अगर आपको मिलते भी थे कोई कैरेक्टर तो वो हिजड़ा किन्नर कम्युनिटी के ही मिलते थे, या ऑफ द गे मैन बट एज अ कॉमिक रोल. तो किसी एक बच्चे को उस टाइम पे ये समझना कि वो कौन एक बहुत बड़ा चैलेंज था. एंड आई गॉट ऑफ काइंड ऑफ इंट्रोड्यूस्ड टू इट थ्रू माई टेक्स्ट बुक ऑफ साइकेट्री. सो आई रिमेंबर आई वॉज इन द, मैंने नई नई किताब खरीदी हुई थी और ट्रेन में हम लोग पढ़ते थे, तो आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू द पेजेस, और उसमें एक चैप्टर था विच वॉज अबाउट सेक्शुअल डिसऑर्डर्स. एंड उस चैप्टर में कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, मैंने पढ़ी, एंड इट फेल्ट लाइक ओ दिस फील्स लाइक मी. बट दिस वर डिसऑर्डर्स, दे वर बीमारियों के नाम थे वो. तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये बीमारियाँ भी हैं. एंड स्पेशली हम जब देखते हैं कि क्यों हिंदुस्तान में ट्रांसजेंडर डॉक्टर्स इतने कम हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि उसको हमेशा एक बीमारी के तौर पे देखा गया, एज अ मेंटल डिसऑर्डर देखा गया, एज अ परवर्जन देखा गया.
यू नो, एज अ क्राइम अंडर सेक्शन 377 देखा गया. एंड ये सिर्फ देखा नहीं गया, आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा गया, आपको क्लास में पढ़ाया गया. अगर आप ये जवाब ना दिए तो आपको फेल कर दिया जाए, क्योंकि यही जवाब आपको लिखना है कि यस होमोसेक्सुअलिटी इज़ अ डिजीज़, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे. सो इमेजिन समवन हु इज़ अ होमोसेक्सुअल पर्सन और अ ट्रांसजेंडर गे पर्सन, उसको यही किताब में पढ़ना है कि आई एम अ मेंटली डिजीज पर्सन, आई एम अ क्रिमिनल, आई एम अ परवर्ट, एंड राइट दैट इन द एग्जाम पेपर. आई मीन हाउ हॉरिफिक दैट इज. वो कभी किसी से ओपन कैसे ही होंगे फिर? अब वो अपने बैचमेट को क्या बताएं, या अपने उन टीचर्स को क्या बताएं जो यही यू नो पढ़ रहे हैं. सो दैट यूज्ड टू हैपन. सो मैंने उस वक्त भी बात नहीं की जो मैंने किताब में पढ़ा, उसके बाद भी, बिकॉज आई वाज लाइक कि नो आई एम नॉट डिजीज्ड, यू नो. सो दिस हैपेंड व्हेन माय ब्लड प्रेशर स्टार्टेड राइजिंग. सो माय ब्लड प्रेशर वाज इंक्रीजिंग, इट शॉट अप एंड आई वेंट टू द डॉक्टर. और उसमें एक अच्छी डॉक्टर हेनेल शाह है मुंबई में. तो शी वॉज द वन whom I met, and she's the one who helped me understand who I am. So she's a psychiatrist, and I went through a lot of assessment with the psychiatry team in KM Hospital where I was studying. And over a period of 1 month and 2 months, I understood who I am. तो उस वक्त उन्होंने एक लेबल दे दिया मुझे, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर. वो एक लेबल था, डिसऑर्डर का लेबल था, बिकॉज वही उस वक्त अवेलेबल टर्मिनोलॉजी तब थी. ये सब नहीं आया था, You know, LGBTQI ये सब कुछ आई भी मीन नहीं आया भी था तो उसको एक एज अ परवर्जन या डिसीज के तौर पे ही देखा जाता था. accepted even as a as a normal nomenclature. variation. But then at least I had a label. I knew who I am. I knew कि what's the path ahead. You know कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई chromosomal abnormality नहीं है. You know, something of that sort. And that is when I found the answers that I was searching for. I was around 20 years at that time. And that's when I also talked about it to my family members and to my batchmates and all. अब वो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो मेरे साथ डॉक्टर्स पढ़ रहे थे उनको मैं कैसे बताऊं, तो मैंने उनको चिट्ठी लिख लिख के उनकी टेक्स्ट बुक्स में छोड़ दिया कि ये पढ़ लें. और मुझे कोई उस चिट्ठी का जवाब नहीं मिला. वो आपने सबकी टेक्स्ट बुक्स में रखा? 4-5 friends, you know, who you were close to. Yeah. But none of them replied back. In fact, only one person told me कि I have read it. I'm accepting it. I'm kind of as a tolerance, but let's not talk about it anymore. Really? I was shocked and surprised. और शायद आज की डेट में अगर ये हो तो मैं बहुत सरप्राइज हूँ, बट शायद उस जमाने में एंड आई रिपीटेडली से आई वाज इन बॉम्बे, जिसको समझा जाता है एज अ बहुत ही इंक्लूसिव, ओपन, वेल इन्फॉर्म्ड काइंड ऑफ सिटी, एंड इन अ मेडिकल कॉलेज which is India's one of the most premier medical colleges. But yeah, that was the kind of awareness or sensitization even at that time. You know, I told this to my parents and they were like, नहीं ऐसे कुछ नहीं होता, ये सब जो साइकेट्रिस्ट होते हैं ना खुद ही पागल होते हैं, जो कि एक कहा जाता है साइकेट्रिस्ट के बारे में, वो तो खुद ही पागल होते हैं, उनकी क्या बातें सुनना, इस तरह की you know, and अब इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो, आपका MBBS चल रहा है, आप डॉक्टर बन रहे हो. And for me to become a doctor was very aspirational. I'm the only doctor in my family, even now. And for them, you know, it's also like a pathway out of poverty. Right. And कि I was बच्चा about डॉक्टर to बन जाएगा, you know, तो हमारे नसीब चमक जाएंगे type of thing. So for them it's like नहीं, तुम अपनी पढ़ाई पे focus करो, you know, don't talk about all these things. Because at that time itself I told them that I want to transition also into a woman. ऐसा नहीं है कि ठीक है, these are my feelings and I want to be like this. just be ऐसा ही happy है with नहीं, Juliet. I want that transition because I think that will give me happiness. But no, उस वक्त वो बात बन नहीं पाई. There was, you know, a lot of resistance that I saw. So I'm like, okay, अभी शांत रहते हैं because I want to become economically independent. पैसे तो चाहिए. तो I was like, let's complete MBBS and then we will see. फिर MBBS हो गया, फिर सोचा अब MD कर लेते हैं and then we will see. फिर MD करके that's when I came to Bombay. Sorry, Delhi. तभी भी उनको नहीं मालूम था कि आप ऐसा सोच रहे हो या No, they were aware. They were aware. I had discussed them and they had declined it. They had declined. They had declined it कि no, you shouldn't do it. You can't do it. You know. Did they even know कि ऐसा होता भी है?
Yes, they knew. They knew. They knew, and in fact, I had shown them some of the videos of transgender people who had undergone transition. So NDTV पे एक शो आता था सलाम जिंदगी, Right. तो उसमें गजल धालीवाल जो हैं, जो आज की डेट में तो हमारे मित्र हैं लेकिन उस वक्त हम नहीं जानते थे उनको, तो she had appeared on the show. Okay. And she had talked about her journey, and she was one of the first trans women I saw. तो उस वक्त सलाम जिंदगी नाम का एक शो आता था एनडीटीवी पे, और उसमें गज़ल धालीवाल हैड कम, जो आज की डेट में तो फ्रेंड है, उस वक्त हम नहीं जानते थे उनको, बट शी वाज वन ऑफ दोज फर्स्ट ट्रांस वुमन जो कि टीवी शो पे आकर उन्होंने अपनी बात की, एंड अपनी कहानी बताई. And I had shown that also to my mother and said कि this is how I will look like. And so yeah, मतलब they were aware that this is in my mind, that this is what I want to be, this is what I want to do, but yeah, they weren't ready to support me in that journey. उस समय उस तरह का अवेयरनेस नहीं Yeah. था. बट हम, जैसे आपने एजुकेशन का रोल बोला ना कि आप डॉक्टर बनना वो सो इम्पोर्टेंट फॉर यू स्पेशली, सो यू वर ब्राइट पहले से थ्रू स्कूल, राइट? Yeah. और फिर you went to medical college, which is one of the best. So the role of education is so important, but most transgender kids, they don't go to school, or because either they face abuse या फिर उनको पेरेंट्स फिर भेजते ही नहीं है, उसके बाद वो स्कूल से तो निकल ही जाते हैं, और देर सम जो कभी गए ही नहीं है. तो ये कितना इम्पोर्टेंट है कि उनको हम वापस एजुकेशन में इंक्लूड कर सके, so that parents at least send them to school. I think it's very important aspect of a child's childhood, that is the schooling life, and it is not only for education. ऐसा नहीं है कि Right, स्कूल right. जाके हम सिर्फ पढ़ने के लिए जा रहे हैं. वो एक मिनी सोसाइटी है जहाँ जाके आप दूसरे लोगों से मिलते हैं, यू अंडरस्टैंड हाउ लाइफ वर्क्स, एंड ऑफ कोर्स यू ऑल्सो लर्न एंड गेट सर्टेन टूल्स जो कि आपके लिए हेल्पफुल हैं इन लाइफ लेटर. और कहीं ना कहीं वो पूरा एक्सपीरियंस जो है वो हम ट्रांसजेंडर बच्चों से छीन रहे हैं, इन द सेंस दैट हमारे पास राइट टू एजुकेशन तो है, जो ये कहता भी है कि ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए हमें एजुकेशन करना है, बट व्हाट आर वी डूइंग फॉर इट? सिर्फ उसे किसी राइट में लिखने से तो काम नहीं चलेगा. वो बच्चा जा रहा है एंड देयर इज़ नो सेंसिटाइजेशन इन द स्कूल अबाउट इट. ना टीचर्स को पता है कि ट्रांसजेंडर बच्चा अगर कोई है भी क्लास में तो उसे किस तरह से गाइड किया जाए. हम दूसरे बच्चों को नहीं सेंसिटाइज करते हैं कि अगर आपके साथ कोई ट्रांसजेंडर बच्चा पढ़ रहा है तो उसको आपको किस तरह से सेंसिटिवली सपोर्ट करना है. उन बच्चों के पेरेंट्स को नहीं समझाते हैं कि इस क्लास में और ट्रांसजेंडर बच्चे भी पढ़ रहे हैं. हमारी टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो बहुत ही बाइनरी हैं, उसमें हमें कुछ दिखाई नहीं देता विच इज़ अबाउट ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन. इधर मेल या फिर फीमेल, Yeah, जो female. उन्हीं के बारे में जानते तो हैं. इट इज़ नॉट ओनली अबाउट मेकिंग ट्रांसजेंडर टॉयलेट्स और वॉशरूम्स इन स्कूल्स, कॉलेजेस एंड वर्क प्लेसेस. दैट्स ऑफ कोर्स द बेयर मिनिमम, वो तो करना ही है, लेकिन वी नीड टू स्टार्ट लुकिंग बियॉन्ड टॉयलेट्स नाउ, एंड वी नीड टू स्टार्ट लुकिंग एट ह्यूमन बींग्स मोर एंड से कि सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है. देखिए, एक ट्रांसजेंडर इंसान शायद मेल फीमेल वॉशरूम भी यूज़ कर ले, वो कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बट प्रॉब्लम आती है लोगों की गेज़, वो कैसे देख रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या सोचते हैं. सो दीज आर द इश्यूज़ विच आर हर्टिंग, एंड कहीं ना कहीं हम कोई शॉर्ट फिक्सेस नहीं कर सकते हैं कि साइनेजेस चेंज कर लो या ईमेल में प्रोनाउंस लिख लो या टॉयलेट्स बना लो एंड उससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. वी नीड टू रियली वर्क ऑन हाउ डू वी अंडरस्टैंड ह्यूमन बींग्स, हाउ डू वी अंडरस्टैंड जेंडर, हाउ डू वी अंडरस्टैंड सेक्स एंड सेक्सुअलिटी, और इसके ऊपर बात करना. स्कूल में इसके ऊपर बात नहीं होती, अभी भी नहीं होती है. अभी भी नहीं होती है. ये इनफैक्ट कोई मुझे लगता है subject ही पहले नहीं ज़्यादा होती थी, अब और कम हो गई है. Okay, कहीं ना कहीं वो रोल हमने इंस्टाग्राम पे दे दिया है कि आप वहाँ जाके सेक्स एजुकेशन या सेक्स सेक्सुअलिटी जेंडर पढ़ लो. क्लास में हम आपको यही पढ़ाएंगे, इतिहास और बाकी सारी चीज़ें, बट वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. एंड कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल रीजंस की वजह से
एक ये कहना कि ये सारी चीज़ें हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, इंडियन कल्चर नहीं है, ये वेस्टर्न एक एजेंडा है जो थोपा जा रहा है। आई थिंक इट्स अ ह्यूज इंसल्ट टू अ ट्रांस पर्सन और अ क्वेयर चाइल्ड कि यू हैव बीन ब्रेन वॉश्ड, दे हैव बीन बॉर्न लाइक दिस। ये कोई नहीं समझता है कि वो दे आर born It's not a choice, कई Except बार for जो- I'm very yeah. pained when I hear this that we respect all choices. अरे भाई ये कोई choice नहीं है. It's not that one day I got up and decided कि I'm bored of being a boy and अब मुझे लड़की होना है. It doesn't work like that, I don't have a choice of not being a woman. I can act, I can fake it like a man, which I did for a very long period of time. But I cannot change how I think as in terms of my gender. I can only change the expression. I can say, ki, okay, if it is not acceptable in the society, if it's not safe in the society to wear salwar kameez and go out, I have no choice but to wear a pant and shirt. But there is actually no choice of being who you are. And इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. And once when you don't have that choice, then the choice to live in your own self, in your own skin, that freedom we are denying to a lot of people. बिकॉज आपके केस में एटलीस्ट यू हैड एजुकेशन, यू वो ब्राइट, एक डॉक्टर बने, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो 90% बाकी केसेस में नहीं होता है. सो सो विल कम बैक टू जो आपने बताया ना, अब यू वुड पुट दैट, आपने वो चिट्ठी डाली थी सबकी टेक्स्ट बुक्स में और उसके बाद भी उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया. फिर उसके बाद जो ट्रांजिशन है वो कब हुआ फाइनली, तो व्हेन डिड इट, और तब तक आपके वो फिर दोस्त बन के रहे या नहीं? So after I left Bombay, I was intentionally not in contact with anyone because I had left Bombay and I didn't want them to know what's happening in my life in Delhi. And I went to Delhi with this hope कि okay, now I'm earning, I'm having a job, so maybe now I can take that next step of transitioning. क्योंकि अब क्या है, मतलब क्या बैरियर है जो मुझे रोके, I can transition now. बट या वो बेवकूफ़ी थी. क्योंकि वो बेवकूफ़ी इसलिए थी बिकॉज वी डोंट रियलाइज द स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड्स दैट वी हैव विद आवर फैमिली मेम्बर्स. डिस्पाइट जो भी, in spite of the distance, जो भी एक्सेप्टेंस whatever, नहीं है, प्रॉब्लम है, फिर the बावजूद they can pull a lot of strings and they can control you a lot. बिकॉज कहीं ना कहीं है, हम उस फैमिली का हिस्सा हैं ही, राइट. सो इन स्पाइट ऑफ हैविंग एवरीथिंग एट माई डिस्पोजल, आई कुडंट टेक दैट स्टेप ऑफ बिकमिंग हु आई वॉज immediately after coming to Delhi because my family started emotionally blackmailing me. saying what? Especially my mother. I have a very very emotional relationship with my mother, a lot of love-hate between us. More love now than hate in the past, but yeah, in the sense that she was also very pained looking at me doing something which according to her was a disaster. तो मतलब उनके लिए ये सोचना कि जिस बच्चे को उन्होंने एक लड़के की तरह पाला, वो अब कोई सर्जरी वर्जरी करा के लड़की बनना चाह रहा है, एंड अब लोग क्या कहेंगे. सो लोग ये बोलेंगे कि आपका बच्चा हिजड़ा था, लोग ये कहेंगे कि ये तो डॉक्टर होके ऐसे कर रहे हैं. सो आप उनके एक बच्चे हैं? नहीं, 3. आई एम वन ऑफ द 3. आप सबसे छोटे हैं? यस, आई एम द यंगेस्ट. तो 3, बाकी 2 बॉयज हैं? यस. तो 3 बेटों में से अभी एक बेटी बनना चाह रहा है. So for her, it was like a huge thing, and she was not ready to accept. But then she was not allowing me to also live my life. तो So there was a lot of emotional blackmail which happened, and the only person at that point of time who mattered to me was my mother. And it sounded very selfish at that time कि मैं अपनी खुशी के लिए ये करूँ. In fact, she used to always say this कि when I'm no more, then you can do it, so that I don't see it. And I'm like, I'm actually literally waiting for her to die to become who I am. And it was very, very sad at that point of time that I had no real choice.
you know, to be who I'm, because it's like if I have to be happy, then she will be sad, and I'm anyway sad at the moment. So ये चलता रहा for, you know, quite some time, but I think things took a lot of turn in 2016. तो 2016 में, you know, the frustration kept on building up for a long period of time. I was in Delhi now for almost 5 years. And you had a job. I was working as a teacher in the medical college at that point of time. And that was when the frustration built up a lot, because I was totally helpless. You know, I just couldn't do anything. तो आई जस्ट हैव टू व्हेन इंटरप्ट यू, जब आप काम करें, व्हेन यू टीचिंग, अब नाउ यू हैव अ जॉब, यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, तो वहाँ पे लोगों का क्या वो होता है रिएक्शन? मतलब डू दे एक्सेप्ट यू द वे कि हाँ अभी तो बिकॉज यू लुक लाइक अ बॉय, या फिर कुछ क्योंकि मैनरिज्म और डिमीनर आपका दिख ही जाता है, चाहे ऐसे लाइक यू सेड ना कि इट्स वेरी विजिबल, तो उसमें डिड यू हैव टू फेस एनी व्हाट डू आई से कुछ ऐसे एडवांसेस या ऐसे गेज जो नहीं होना चाहिए, उस तरह का एक यू नो डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम द सीनियर्स और फ्रॉम योर पियर्स? Yeah. So it's very interesting that you asked this. It's because, you know, when I joined the medical college, that was in 2013, and I was who I was as a trans person at that point of time. Visibly trans, I would say, in a way, because yeah, mannerisms and etc. were there. And you know, I was back to the medical college scene. So I was in the medical college previously as a student, and now I was there as a teacher, and therefore I had more privilege now as compared to a student. And that's when I, you know, started doing friendships with younger people. I started becoming friends with my students. I was alone in the city. I had no friends, literally. So I was like, let me talk to them, because it seems that they are also in a lot of pain in their life. So I started talking. And that's when I started also disclosing to them about who I am. You know, saying ki I am a transgender person, and this is my background, and this is why I've come to Delhi, and this is, you know, my aspiration, etc. And to my surprise, there was a lot of acceptance amongst them. जो शायद मुझे मुंबई में कभी नहीं मिला. But of course that was a different era, a different time. But in Delhi, amongst my students, I did find a lot of you know, acceptance. And they were like, fine, yeah, we like you as a teacher, and it doesn't matter to us They what didn't your, think that, you know, gender, anything is there. But of course, yes, there were some exceptions who would say कि oh, ये हमारे मज़हब के against है. मज़हब के against. Because I teach in a Muslim minority institute, right? तो कहीं ना कहीं ये भी हो जाता है, नहीं ये ऐसा नहीं है इस्लाम में, and all that kind of stuff. And when I started transitioning, that's when it was full blown. Both the support as well as the opposition. And I had not anticipated, लेकिन ये जो transition वाला phase था, in which I started my hormones and before dressing up completely as a woman, was a period of nearly 1.5-2 years. So ये एक medical procedure है? Yeah. And this Medical, social, legal in a lot of way, because you change your name, your gender legally, you know, also how you dress up, what pronouns you use. But yeah, I started receiving hormonal treatment in 2017. Okay. And I started dressing up as a woman in 2019. So पूरे for 2 साल, for those 2 years, you know, so during that time I didn't look like a typical man, and I didn't look like a typical woman. फिर आप I had कैसे longer जाते थे hair. college? I had no beard. Okay. You know, my breasts had started growing under the influence of the hormones. And I was there in public view. And you would wear a t-shirt. I was and a wearing pants. kurta pajama or, you know, normal shirt. And I was there. So that was like, you know, people will shift in their chairs when you enter a room like that. So I used to do this, that whenever I met a new set of students, I would say, let's address the elephant in the room.
वरना आपका क्लास में मन नहीं लगेगा. जब तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आंसर ना हो जाए कि वाई इज दिस पर्सन लुकिंग लाइक दिस, और ये कौन है. ये कौन है, ये क्यों है ऐसे, यू नो. बिकॉज सी पीपल विल टॉक, यू विल टॉक टू योर सीनियर स्टूडेंट्स और यू विल टॉक टू अदर टीचर्स. सो लेट्स टॉक अबाउट. सो फर्स्ट 10-15 minutes I used to spend in, you know, trying to tell them who I am. And I would say if you have any questions you can ask now or later. And once that is done, then we'll say कि चलो आप पढ़ाई करते हैं. But I wish that happened when I was in my college. I didn't see any teacher who was openly Open, queer, yeah. any student who was openly queer. But did you meet them otherwise, even if they were not Yeah. open? I came to know later on. Oh. Yeah, but at that time I wasn't aware and no one was publicly visible to me in the medical college. But now in my medical college we do have queer students, we do have trans students who are also open to a lot of people. And I think in a way that, you know, journey is getting completed. So yes, I mean in that transition phase there were a lot of people who would come and you know, speak messages of support that, you know, we are there, we understand you, all the best for this journey. But there were some who said कि I'm a bad influence on younger minds. So these were the, ये आपके peers थे जिन्होंने, These were mostly teachers. जो आप ही के साथ के Yes. लोग हैं, but Yes. वो support नहीं कर रहे हैं नहीं उस कर तरह रहे से. थे. In fact, I was on the verge of losing this job also because, you know, Oh. question was raised कि आपकी डिग्री तो किसी और नाम से है. अच्छा, तो ये भी एक प्रॉब्लम है. And अभी आपका नाम कुछ और है. And you know, it was very shocking to me that people got that question because it shouldn't be a case. देखिए हिंदुस्तान में बहुत सारी महिलाएं शादी के बाद अपना नाम चेंज करती हैं. उनका MBBS हो रखा होता है शादी के पहले, उसमें Right. कुछ और नाम होता है, बाद में कुछ और नाम होता है, यू नो, सरनेम चेंज हो जाता है. बट नो वन रेजेस क्वेश्चन ऑन दैट. बट व्हेन इट कम्स टू ट्रांसजेंडर पीपल आप बहुत, यू नो, लकीर के फकीर बन जाते हो कि सारे रूल वहीं पे सरनेम apply अलग करने है, ये है अलग अलग है. एंड दैट वाज अनदर बैटल दैट आई हैड टू फाइट टू से कि देन व्हाट शुड आई डू. The universities are not retrospectively changing the degrees. Right. So what do I do? You know, should I continue being with carrying a male name and male gender? That also doesn't all work also. So बहुत सारे ऐसी छोटे छोटे battles जो हैं वो unfortunately लड़ने पड़ते हैं. उसमें कोई आपके support में था among the teachers, the faculty, the administration? I think देखिए support में थे, I wouldn't say कि नहीं थे, and especially a lot of my students were, you know, there But for me. students का say तो इन Exactly, चीज़ों में but उनका होता नहीं है. privilege कम होता है. Right. I mean, a lot of people gave me that emotional support and strength कि you can do it. And I wish I could say कि oh, there were these people who helped me a lot, but there was none. नहीं And मिला there was उस none. तरह का And support. I also saw this that when I became successful, a lot of people became my supporters. अच्छा, तो But when it after that- mattered, you know, that support was missing. I mean, a lot of people, and I say this with a lot of respect, were supporting, but they weren't visible. In the sense कि वो कहेंगे हाँ हम आपके support में हैं, but no one can publicly speak about it. उनमें भी वो उतना courage नहीं है कि आप openly दोस्ती कर Because it's a सकें. taboo topic, you know. So they are like, if you are, you know, supporting this, then are you like gay sympathizer? Oh. You know, those kind of stuffs will be spoken against you and so on. एक आपकी image खराब हो जाएगी. So people don't want to talk. हालांकि मनी मन में वो they were my well wishers. But मैं वही Which is कहती still हूँ a कि relief. मनी मन में करने से तो क्या ही फायदा होता है ना. But at least you know कि चलो कोई हाँ, मन at में least तो some accept was करता there. है. But yeah, that didn't happen at that time. So I didn't have any support. I took that decision to transition because it was a life and death matter. कि अब आप उस एक personality में नहीं रह सकते हैं जो बार Because अपने yeah, आप I निकल के आ रहा lived है. like that for a very long period of time, you know, and so I lived like that for almost 33 years of my life. So that was like midlife crisis एक हो ही जाता है आपको ना कि अब तो क्या ही मतलब I couldn't live. And trigger warning over here that I also tried to kill myself at that point of time. You know, I was like कि this life is not worth living because I can't do this fake acting every day of saying I'm a man when I know I'm not, you know, and I cannot turn into a woman
in this society, I mean, become a woman whom I identify as, because not allowed. So then how do I do? Like, I was pushing day after day after day, but at one point of time I was like totally कि अब नहीं हो सकता, बस खत्म. I've lived 33 years, it's enough. I don't want to live anymore. तो ये आपने उस सुसाइड जैसे थॉट से स्टेप बैक कैसे हुआ? Again, a couple of my students, I remember on the WhatsApp they kept kind of constantly messaging me. नहीं नहीं अभी नहीं. उनको मालूम चल I गया? had shared it with them at that Yeah. point, you know, that I want to like kind of end it now. Oh. And next day they met me also, and we went out and we talked, and so, but that moment passed. But that also gave me time to reflect upon me, ki, you know, what is stopping me. And I realized it is basically, you know, the care and concern for my family, that in my own happiness I don't want to harm them emotionally. But then I was like, ki, what if I die by suicide, you know, will they be happy? Of course they will be not, and it will be a lifelong pain for them. If I transition into a woman, will they be happy? It looks like they will not be happy, and maybe again it will be a lifelong pain for them. So they will be anyways unhappy for life. But what about me? At least in one situation, in one option, I will be happy, right? So it was like, "Ki, then I have to do this. We have only one life, and I mean, I can't, you know, be like at 60, 70 like this." So in a way, those students saved you from Yeah, that very from the edge. उस ड्रास्टिक स्टेप Yeah. से कि एकदम कोई स्टेप लेने वाला उससे Yeah, बचा. yeah. दैट्स ये बहुत अच्छी बात है. और स्टूडेंट्स का ये होता है कि दे उतना जज नहीं करते हैं. मुझे से जो हमारे पियर्स होते हैं वो हमेशा जज करना या कुछ ऐसी बातें, और आप उनसे ओपन अप ही नहीं हो सकते. Yeah. बट यू It's very difficult to talk or have a conversation with them. बिल्कुल लाइक माइंडेड लोग अगर नहीं मिले आपको, जो आपके केस में तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा था, सो यू फाउंड दैट सोलिस अपने स्टूडेंट्स Yeah. में. तो वो आई थिंक दो स्टूडेंट्स आर योर फ्रेंड्स नाउ. Yes, yes, they are. एंड डू यू हैंग आउट विद देम? They are not in the city now. ओ अच्छा, वो Yeah. पास कर Yeah. चुके. But are you in touch? Yes, I am in touch. And I think, you know, being a teacher and meeting new students every year, students who are like 17, 18, 19 year old, it has helped me keep myself very grounded and to understand the students, you know, and trust me, the students are suffering a lot, especially those who are in the medical colleges or, you know, in technical or professional courses. Because of? There's so much pressure on them, you know. Otherwise, you're saying? Yeah, irrespective whether they're queer or not. क्यों सबकी लाइफ में है कुछ ना कुछ परेशानी है, नेचुरली कम ज़्यादा है, बट a lot of them are suffering from mental health issues, and you know, people will call them Gen Z, and you know कि वो Gen Z तो ऐसे हैं, Gen Z वैसे हैं, as if they are most irresponsible, careless people in the world, and you know, we are like, ये तो बकवास लोग हैं, हम इनकी बात नहीं सुनना चाहते. But and that is why they are also doing a lot of rebellion. You know, they don't want to talk to older people because they're like, "Ki, if you are going to judge them before you That is even the- have that conversation, then why will they, you know, open up with you?" There's a lot of this angst, there's a lot of rebellion, there's a lot of frustration, anxiety that we get to see. And naturally they are gonna use more social media because जो जीते जागते लोग हैं सामने, they are not worth having a conversation with. Because they're not receptive to that conversation. क्योंकि जो उनके पेरेंट्स या उनकी उम्र के लोग हैं वो बोलते हैं हमारे ज़माने में तो हमने मेंटल हेल्थ जैसा वर्ड ही नहीं सुना था कि इन लोग को क्या मेंटल Forget हेल्थ parents, even doctors say that. राइट. Even doctors, I mean, which is surprising to me, कहते हैं कि वो डिप्रेशन कुछ नहीं होता, you know, या हमारे ज़माने में कितना, and ये जो डायलॉग है हमारे ज़माने में, which every statement that starts with हमारे ज़माने में, trust me, I stop listening after that. विच इज़ द आई थिंक द बेस्ट थिंग. Yeah. क्योंकि अभी वो है ना कि अरे डिप्रेशन तो एकदम फैंसी वर्ड बना लिया है सबने कि इतनी सी बात हो गई तो डिप्रेस हो गई, बट हो रहा है ऐसा. Yeah, it's a वो fact, सच and है. you know, we can't be in denial कि क्यों हो रहा है, but अब हो रहा है तो हो रहा है. And
I think that interaction with the young students has helped me a lot even now to understand what are the mental health issues. In fact, I'm part of this national task force जो कि student suicide prevention के ऊपर जो सुप्रीम काम कोर्ट कर रहा है, ने which is किया appointed by the Supreme Court, and we have been interacting with a lot of students, talking about their problems, and there are plethora of problems. Young kids who are in schools are dying by suicide. Coaching School, classes, coaching, then IITs, IITs, and medical colleges, and कहीं ना कहीं इसमें ये भी है कि बच्चे को करना कुछ और है, एंड पेरेंट्स अपनी मर्जी थोप रहे होते हैं. लाइक आई वुड से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन द मेडिकल कॉलेजेस डू नॉट वांट टू बी डॉक्टर्स. they do not want to दे डू नॉट वांट. ये शायद आज से 30 साल पहले की बात होगी जब हर बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनना था. आज की डेट में अगर उनको फ्री विल दी जाए तो शायद वो कुछ और बनना चाहेंगे. ऐसा आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया after Absolutely. I mean, I think even my decision to become a doctor was very social conditioning. कि अगर आप मेरिट लिस्ट वाले काइंड ऑफ बच्चे हो तो आपको तो भाई डॉक्टर ही मतलब if you're a bright kid तो आप बनना है, डॉक्टर है बन ना? सकते हो. If I said कि I wanted to become a chef, तो आप बोलेंगे आप कहाँ बावर्ची बन रहे हो. तो वो ही है अभी भी You know? परसेप्शन. या जबकि अब बच्चे को बनना है शेफ, उसको बनने दो. तो ये वन ऑफ द इश्यूज बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ दैट कमिटी. Yeah. तो उसमें सबसे मेजर एक ये कि आप उसको बनने नहीं दे रहे हो, और भी कोई इश्यूज है जैसे पीयर प्रेशर है या फिर सोशल मीडिया. व्हाट आपने और क्या पाया कि इसमें So और क्या क्या that issues we are हैं? still talking to students. It's still underway. So it will be very preliminary to say ki what are our findings on that. But I want to talk about the social media thing. Yeah. Because social media को हम एज अ विलन कहीं ना कहीं दिखते हैं. आज की डेट में हम लोगों को कहते हैं कि सोशल मीडिया पे मत या हम कहते हैं गूगल वाले पेशेंट होते हैं, ये गूगल से पढ़ के आते हैं. कहीं ना कहीं उससे हम एक बहुत एक बुरी नज़र से दिखते हैं. बट एज अ क्वेयर पर्सन, एज अ पर्सन हु टॉक्स अबाउट मेंटल हेल्थ, trust me, social media is the one which actually is giving the most information and correct information on the issue. मैंने जितना शायद क्वेयर हेल्थ या ट्रांसजेंडर हेल्थ के बारे में पढ़ा है या ट्रांसजेंडर लोगों के हेल्थ एक्सपीरियंसेस के बारे में समझा है, वो सोशल मीडिया से ज़्यादा समझा है रादर देन एनी ऑफ द टेक्स्ट बुक्स और एनी ऑफ द पब्लिश्ड आर्टिकल्स, जर्नल आर्टिकल्स. वहाँ आपको ये नहीं मिलेगा. वो आपको मिलता है सोशल मीडिया पे, जहाँ ट्रांस लोग अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे लोग एज एजुकेटर्स काम कर रहे हैं. इवन अबाउट मेंटल हेल्थ, वो शायद आपको साइकेट्री की जर्नल में ना मिले जो आपको शायद सोशल मीडिया पे जो देखकर रियल मिले. लाइफ एक्सपीरियंसेस बिल्कुल रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, द पॉडकास्ट दैट पीपल आर डूइंग, द इनवाइटिंग ट्रांस एंड मेंटल हेल्थ पीपल. सो वी नीड, I always say this, that we need more podcasts in the curriculum. Right. The talking, Because the conversation. what a person's life experience can teach you cannot get from a textbook. So वो, लेकिन हम कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को एक बहुत ही बुरी नज़र से देखते हैं और उसे डाउन प्ले करते हैं. ऑफ कोर्स इट्स अ टेक्नोलॉजी एंड इट कैन हैव एक्सट्रीम harmful effects also, same with artificial intelligence. But especially जो vulnerable, marginalized groups हैं, जिनको कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में इतनी जगह नहीं मिल पाती है, उनके लिए एक इंडिपेंडेंट मीडिया लाइक सोशल मीडिया गिव्स देम दैट प्लेटफॉर्म टू स्टेज देयर एक्सपीरियंसेस एंड वॉइसेस. एंड I think for queer trans people that's a very good platform to learn about other people's experiences. Also a comfort कि Yeah. यहाँ पे कोई हमें कोई डायरेक्टली Yeah. ना जानता है, हम Yeah. आपस में लाइक माइंडेड या जो Yes. भी एक. मैं आपका एक रिसर्च पेपर अपने रिसर्च में पढ़ रही थी, तो उसमें यू वर वन ऑफ द राइटर्स. उसमें यू हैड रिकॉर्डेड ट्रांसजेंडर पर्सनस के फ्रॉम अक्रॉस इंडिया एक्सपीरियंसेस इन एक्सेसिंग हेल्थ केयर. तो ये हेल्थ का जो इशू है वो तो एक तो एक्चुअली अपने आप से हॉस्पिटल में जाना, फिर बहुत सारे इश्यूज़ उन्होंने वहाँ पर कि लोग उनको एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं या फिर कभी ओवरचार्ज करते हैं या फिर सेंसिटिव ही नहीं है कि उनको भी कोई इशू हो सकता है जिसको ट्रीट करने की ज़रूरत है. तो वेरी
आई मीन जो मैंने उसमें पढ़ा एक्सपीरियंसेस, ये आपने खुद से देखा है, एंड नाउ बिकॉज यू आर अ डॉक्टर, आपने खुद ऐसे लोगों को व्हेन दे कम, व्हेन ट्रांस पीपल कम, हैव यू सीन आपके आसपास हॉस्पिटल में अपने पेयर्स को जो बाकी डॉक्टर्स हैं उनको इस तरह ट्रीट करते हुए, और कितना मुश्किल है उनके लिए हेल्थ केयर एक्सेस करना? जब हम हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं तो हमें लगता है कि वो सिर्फ हॉस्पिटल्स हैं, बट हेल्थ केयर इज़ नेचुरली बियॉन्ड हेल्थ केयर। एंड ये जो रिसर्च हम कर रहे थे वो स्पेशली कोविड के टाइम में हुआ था, जहाँ पे वैक्सीनेशन भी दिया जा रहा था, कोविड की टेस्टिंग भी हो रही थी, and we were also looking at those challenges that people faced, and in all aspects of society, चाहे वो एजुकेशन हो या हेल्थ केयर हो, आपको वो चाहिए। while education is very important for living life, it is not like mandatory for survival. आप स्कूल नहीं गए तो ऐसा नहीं कि लाइफ ख़त्म ही हो जाएगी, लेकिन बिना हेल्थ केयर के तो नहीं काम चलेगा, बिकॉज लाइफ एंड डेथ वाला वो इशू होता है। सो वो वाला जो एक्सपीरियंस है ना ऑफ अ ट्रांस पर्सन इन दी हेल्थ केयर स्पेस, वो इनएविटेबल है, कभी ना कभी ज़िंदगी में आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा। बट अनफॉर्चुनेटली द हेल्थ केयर हैज़ नॉट बीन डिज़ाइंड फॉर ट्रांसजेंडर क्लाइंट्स, it has been designed for male clients and female clients. The doctors have not been trained to treat transgender patients. The staff has not been sensitized on how to handle them. So there were many experiences where visibly trans people अगर आते भी हैं तो like अगर हमें एक आदत है ना कि हम हिजड़ा किन्नर समाज को ट्रैफिक सिग्नल पे देखते हैं भीख मांगते हुए, लेकिन वो डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं, ये सोचना थोड़ा मुश्किल है। तो उनको कई बार अगर वो जाते भी हैं, लेट्स से दे हैव इंश्योरेंस एंड दे गो टू फेमस हॉस्पिटल्स, 5 स्टार हॉस्पिटल्स जो हैं, तो वहाँ पे तो उनको सिक्योरिटी गार्ड घुसने ना दे। अच्छा, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं बेसिकली, क्योंकि उनको लगता है ये तो या तो भीख मांगने आ रहे हैं या बच्चे चुराने आ रहे हैं। और ऐसा होता है? ऐसा लगता है उनको कि ये लोग बच्चे चुराते हैं, तो इसलिए इनको अस्पताल में एंट्री मत दो। या ये चोरी करने आ रहे हैं, ये यहाँ पे एक न्यूसेंस क्रिएट करेंगे। सो वहीं पे हो रहा है। और जिन लोगों के साथ नहीं भी होता, लाइक हो सकता है 10 लोग जा रहे हो अस्पताल में, एक के साथ ही हो रहा है, लेकिन वो एक जब जाके दूसरों को बोलते हैं, फिर वो एक परसेप्शन हो जाता है कि वो अस्पताल में देखो वो फलाना गई थी, उसके साथ तो ऐसे हुआ, हम तो नहीं जाएंगे, हम तो भाई वो एक कोई क्वैक है उससे जाके दवाई ले लेंगे या सेल्फ मेडिकेशन कर लेंगे। बट समटाइम्स यू हैव नो चॉइस एंड यू हैव टू गो टू अ हॉस्पिटल, एंड नीदर आर मेडिकल एजुकेशन सिस्टम्स, नॉर आर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम्स, नॉर आर लॉज आर conforming to trans experiences. बिकॉज डॉक्टर्स को तो बहुत हद तक पहले ये पढ़ा गया कि ये डिसऑर्डर है, ये एक बीमारी है। अब हम उनको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो उसे एकदम से, अभी तो उनको जानना चाहिए ना ये, क्योंकि नाउ वी हैव ट्रांजिशनड आल्सो, बट स्टिल इट्स नॉट देयर इन द मेडिकल करिकुलम। अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है। इनफैक्ट हम उसके लिए बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं कि एक तो ये है ना कि गलत इन्फॉर्मेशन को करिकुलम से हटाना, राइट, और एक है नई इन्फॉर्मेशन को लाना। तो वो हटाने वाला काम तो कुछ हद तक हो गया है, लेकिन नई इन्फॉर्मेशन लाना नहीं है। एंड आई डोंट ब्लेम दी डॉक्टर्स। आई मीन अगर कोई एक ट्रांस मैन उनके पास जा रहा है और उसका पैप्समियर होना है, तो उनको नहीं पता कि इसमें मुझे कुछ अलग भी करना है। ये कैसे करेंगे? जैसे गाइनी ओपीडी में अगर ट्रांसजेंडर मैन जाता है, बिकॉज देयर वर यूट्रस, सो दे आर गोइंग टू गाइनी ओपीडी। लेकिन हमें लगता है गाइनी ओपीडी में मरीज तो सिर्फ फीमेल ही हो सकती है, ट्रांसजेंडर मैन कैसे आ सकता है? सो द सिस्टम्स, द पीपल्स ट्रेनिंग, नथिंग इज डिजाइंड। इवन द लॉज, आप जाते हैं फॉर्म में मेल फीमेल ही लिखा हुआ है। अदर वाला जो ऑप्शन अभी आया है, हर अस्पताल नहीं फॉलो कर रहा है, और उनको वो नहीं फॉलो कर रहे हैं तो कोई पूछने वाला नहीं है कि आप क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं, विच इज़ द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। या कई बार मेडिकल डिसीजन मेकिंग हमारे नेक्स्ट ऑफ किन करते हैं। सो दैट थिंग कि भाई अगर आप बीमार हो तो आपकी चोजन फैमिली होती है ट्रांसजेंडर लोगों में, क्योंकि रिश्ते से नहीं फैमिली बन पा रही है, तो चोजन फैमिली क्या वो डिसीजन ले सकते हैं? द हॉस्पिटल डजंट अलाउ दैट। There have been numerous instances where trans people have died and their bodies have been handed over
टू देयर फैमिली मेम्बर्स जिन्होंने उनको घर से निकाल दिया था, और उन्होंने फिर एंड दे हैव एक्सेप्ट किया। क्रीमेटेड देम इन देयर रॉन्ग जेंडर. सो कहीं ना कहीं लाइफ में भी उन्हें एक्सेप्टेंस नहीं मिला, और डेथ में भी दे कुडंट डाई एज अ वुमन दैट दे वर आइडेंटिफाइंग एज. एंड कहीं ना कहीं इसमें हेल्थ केयर सिस्टम का भी रोल है. द हेल्थ केयर सिस्टम इज लर्निंग बट द पेस इज वेरी स्लो, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम अ लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग हार्म्ड. तो ऐसे कोई गाइडलाइंस अभी नहीं है कि अगर कोई ट्रांसजेंडर पर्सन हॉस्पिटल में आएगा तो उसका ये फॉर्म है, उसको उसके लिए ये अलग स्क्रीनिंग है, या वो इस लाइन में लगेगा, ऐसा नहीं है? पेपर पे तो सब कुछ है. अच्छा, है पेपर पे. मतलब ट्रांसजेंडर का कानून तो है इस देश में जो ये Alright, कहता है right. कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए हेल्थ केयर में, जो कहता है कि वार्ड होने चाहिए, वॉशरूम होने चाहिए, सब कुछ होने चाहिए. इस पेपर पे है, बट इम्प्लीमेंटेशन का है. और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की नहीं, सरकारी अस्पतालों में का है. तो जो भी बड़े सरकारी अस्पताल हैं लाइक एम्स, जामिया, अदर्स, इन सब में भी नहीं इम्प्लीमेंट होता कुछ ने तो अब डांट फटकार खा के शुरू कर रहे हैं काम इस पे, बट मेजॉरिटी ऑफ द हॉस्पिटल्स, एंड बाय मेजॉरिटी आई मीन 99% ऑफ देम do not have even the basic bare minimum formality के लिए चीज़ें like separate queues या accessible washrooms और wards etc. तो वो है ही नहीं. एंड कहीं ना कहीं उसकी वजह से ट्रांस पीपल दे अवॉइड गोइंग टू द हॉस्पिटल्स, दे अवॉइड मीटिंग डॉक्टर्स. वी विल डिस्कस ऑन द व्हाट्सएप कि कौन सा फ्रेंडली डॉक्टर है, उस एक डॉक्टर के पास सब जाएंगे लेकिन बाकियों के पास नहीं जाते. तो इतनी जो ये शर्म अटैच्ड है, ऐसा क्यों है ये? इज दैट राइट? बिकॉज ऑफ द ये जो know? स्टिग्मा है इसको लेकर के, एक तो ये है कि कुछ इसमें का बहुत ही रियल एंड फेस्ड है, यानी कि उन्होंने अपने खुद ने फेस किया है ये चीज़ें, और कुछ ऐसा है जो किसी और ने फेस किया और उनको पता है, सो उनको लगता है हमें भी फेस करना पड़ेगा. और कुछ जो है वो कुछ हद तक परसीव्ड है कि ऐसा ही कि होगा. समाज ऐसा ही है, तो ये डॉक्टर भी तो इसी समाज का हिस्सा है, तो ये कैसे अलग होंगे, ये भी मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे. सो वो परसेप्शन है, और वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना उस मरीज़ में कि वो फील करे कि यहाँ मुझे सही इलाज दिया जाएगा, वो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का काम है. अगर उनको जब अस्पताल में वो एंटर करते हैं, वहाँ पे जो गार्ड है, अगर वही ट्रांसजेंडर दिखे, अगर वो गार्ड खुद एक ट्रांसजेंडर महिला हो, तो उनको लगेगा हाँ ये तो अस्पताल अच्छा है, यहाँ ये काम कर रही है, तो इसका मतलब काम ठीक होगा. जब वो जाते हैं देखते हैं और एक ट्रांसजेंडर डॉक्टर है, या रिसेप्शन पे ट्रांसजेंडर है, या वहाँ जगह जगह लिखा है कि ट्रांसजेंडर वॉशरूम ये है, ट्रांसजेंडर लोगों के लिए भी हमने फैसिलिटीज़ दे रखी है. सो दैट इज़ हाउ द कॉन्फिडेंस विल गेट बिल्ट अप. लेकिन अगर ये नहीं दिखता है तो वो चीज़ नहीं हमें लगता है कि हमारे लिए फ्रेंडली है. क्योंकि आप वैक्सीनेशन सेंटर के फर्स्ट ट्रांसजेंडर हेड बने थे 2020 ड्यूरिंग द पैंडेमिक. तो लोग तब वहाँ पे लोग आए थे उस ट्रांस कम्युनिटी से, उन्होंने डिड दे फाइंड वो कॉन्फिडेंस आप में? हम ये कहते हैं, and I think in one of the previous podcasts you have also spoken to Dr. Satyendra, who is my partner in crime in pushing forward transgender rights as well as disability rights. तो जब हम हेल्थ केयर सिस्टम को एक्सेसिबल बनाते हैं, यानी कि सभी मार्जिनलाइज ग्रुप के लिए, चाहे वो डिसेबिलिटी वाले हों या जेंडर आइडेंटिटी से रिलेटेड हो, तो वो सबके लिए सिस्टम बेहतर हो जाता है. फिर वो एबल बॉडीड जो लोग हैं उनके लिए भी बेहतर हो जाता है, और जो सिस जेंडर लोग हैं उनके लिए भी बेहतर हो जाता है, क्योंकि द पीपल देयर देन गेट ट्रेन्ड टू बी अकोमोडेटिव, टू बी मोर इंक्लूसिव फॉर एवरीवन. सो जब हमने ये सेंटर रन किया, वैक्सीनेशन सेंटर, वी सेड कि इट विल बी इक्विटेबल, विल ट्राई टू मेक इट एज इंक्लूसिव एज पॉसिबल फॉर एवरीवन, एंड देयरफॉर नॉट जस्ट क्वेयर पीपल बट इवन other people left other centers and came to our center. Of course उसमें कुछ रोल टाइम्स ऑफ इंडिया का ये था कि उन्होंने एक आर्टिकल छापा था इसके ऊपर कि दिस इज द सेंटर वेयर आई एम वर्किंग, सो लॉट ऑफ पीपल केम जस्ट टू वॉच मी. काफी इंटरव्यूज भी आए थे आपके उस समय. एंड फॉर मी आई वाज वेरी वेरी ग्रेटफुल दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट थाउजेंड्स ऑफ पीपल
एक तो सेवा करने का उनको मौका मिला, एंड प्लस फॉर देम टू सी अ ट्रांसजेंडर पर्सन एज एन इंचार्ज ऑफ अ वैक्सीनेशन सेंटर, आई एम श्योर लॉट ऑफ माइंड्स So it you did know, have bring become some changed. degree of change. बिल्कुल, it did bring, and I made sure that I went and talked to people, और उसमें 80-90 साल के लोग आ रहे हैं, वो देख रहे हैं, एंड समवन सेइंग कि हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा इसलिए हम यहाँ पे आए देखने के लिए. तो कोई ऐसे भी था जो वो सोच रहे हैं कि हम इनसे कैसे करा सकते हैं Yeah. वैक्सीन, ऐसा भी था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था. Which is इनफैक्ट दे रियलाइज कि दिस इज अ सेंटर दैट केयर्स फॉर पीपल, all kinds of people. So yes, a lot of trans and queer people did come for vaccination, but then beyond that I think a lot more other people also came. तो ये पॉजिटिव एंड मैं ये संदेश अपने ट्रांसजेंडर मित्रों को भी देते रहती हूँ कि देखो, डर लगता है सिसजेंडर वर्ल्ड में जाके काम करने में, उनके साथ इंटरेक्ट करने में, क्योंकि हमें लगता है कि वो हमें नहीं समझ पाएंगे, बट कहीं ना कहीं हमें उनको भी थोड़ा मौका देना चाहिए. एंड यू विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज कि सारे लोग बुरे नहीं हैं. That there are a lot of people out there who will listen, who will understand, and who will accept you as you are, but उनको उसका मौका देना पड़ेगा हमें. बिल्कुल. आई अंडरस्टैंड कि वो बर्डन हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए वो लेबर करने का, बट इफ़ यू कैन देन यू मस्ट बी विजिबल एंड यू मस्ट स्पीक एंड यू मस्ट एम्पलीफाई द वॉइसेस ऑफ अदर पीपल. कि ओपन आप होकर आगे अपनी बात Yeah. शेयर करिए, चाहे जो भी हो. जी. तो आपने अभी जैसे हमने बात की ना कि इतने सारे ट्रांसजेंडर्स, बिकॉज दे आर ओनली अ फ्यू जिनके पास एजुकेशन थी या जो डॉक्टर या कुछ और बन सके, वी सी देम सिग्नल्स पे, ट्रेन्स में, बाकी और फंक्शंस वगैरह जो होते हैं जिसमें वो यही काम होता है घरानों में, और मोस्टली बहुत सारे लोग सेक्स वर्क में हैं, वो फोर्स्ड सेक्स वर्क है या जो भी, बट दैट इज़ हाउ दे अर्न देयर लिविंग, जिससे उनका खाना पीना घर चलता है, जिससे वो जी रहे हैं. दे हैव टू फेस अ लॉट ऑफ अब्यूज़. डिड यू एवर हैव टू फेस अब्यूज़ अपने लाइफ में? I think I was very privileged and protected in that sense that, being a medical student and a doctor did save me from a lot of bad things that unfortunately happens to a lot of other transgender people. So no, fortunately I was never physically or even verbally to a great extent abused, and I would say for that I had to also stay a lot in my own shell. अपने अंदर की पर्सनालिटी को छुपा के, बहुत छुपा कर, एंड टू नॉट सोशलाइज अ लॉट, क्योंकि लाइक आई रिमेंबर इन द मेडिकल कॉलेज आई नेवर वेंट आउट एंड टॉक टू एनीवन. आई नेवर अटेंडेड एनी ऑफ माई कॉलेज फेस्ट्स. आई डिडंट इवन गो टू माई ओन कॉन्वोकेशन कॉन्वोकेशन पे नहीं गए. because I was not at all confident, social. I was a very very introvert kind of person at that point of time. वो अब देख के शायद लोगों को यकीन ना हो, but I was totally in my shell. I was invisible. And most are like that. And most people are going to be like that. क्योंकि वो उनको नहीं है कॉन्फिडेंस कि कोई हमसे ओपनली बात करेगा या नहीं करेगा. So that used to happen, and because of that, I think I saved myself from a lot of potential abuse. नहीं तो वो अब्यूज बहुत ही. So like for me, rampant I है. never went to the hostel, boys hostel, even once. Oh, where did Not you even stay? once. I was staying at home Oh. because the college was also in Bombay. So And it was close by. yeah. So so you tend to avoid areas. You will not go out late in the night. You will not go in functions जहाँ पे आपको लगता है कि ragging हो सकती है आपकी. सो कहीं ना कहीं फिर हम लेकिन अपनी एक ऑथेंटिक लाइफ नहीं जी रहे होते हैं ना, हम बहुत एक रेस्ट्रिक्टेड लाइफ जी रहे होते हैं, जो बहुत सारी महिलाओं का भी एक्सपीरियंस है कि वो नहीं, बहुत सारी पाबंदियां हैं टू सेव देमसेल्व्स, तो टू ये प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. नॉर्मलाइज नहीं हो पाया अभी तक, टू लिव कि एक ट्रांस पर्सन या सिस जेंडर पर्सन एक नॉर्मल लाइफ जी सके. आई थिंक कुछ ऐसी छोटे छोटे स्पेसेस हैं, इफ़ यू पुट देम लाइक डॉट्स on a small map, जहाँ पे लोग खुद अपने तरीके से रह सकते हैं, बट अदरवाइज majority of the world, I'm not saying India, majority of the world is not accepting of transgender people even now in 2025. ये बहुत ही आयरॉनिक है, स्पेशली इंडिया में जहाँ पे
at least Hindu scriptures में, in Indian mythology में, you will find so many examples of trans persons, you know, जो and एक normal like the concept of Ardhanarishwar, Shiva being Ardhanarishwar, then Shikhandi in Mahabharat, and Arjun being Brihanala for a year. ये सब एग्जाम्पल्स आप देखते हैं जो लोग बहुत रिलीजियस हैं, एंड आई एम श्योर महाभारत ऐसा कोई नहीं होगा जिसने नहीं देखा होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी रिलीजन से वो हो. मोस्ट ऑफ देम वुड हैव, इंडिया में तो दे वुड हैव वॉच्ड महाभारत, बट स्टिल यू नो द एक्सेप्टेंस वो या तो बहुत ही कम है या नहीं है, तो वो it doesn't go in line with, you know, जो आप पढ़ रहे हो, जो I आप have an देख रहे हो. interesting story on Mahabharat. As you mentioned, people of all religion watch it. And I also used to watch it, you know. So I was a small kid at that time जब वो आता था. And so I was unaware, and one fine day the episode of Shikhandi dropped in. And you know, everyone was watching. And of course I was visibly girlish in my mannerism. So the episode of Shikhandi came, and after that episode I had gone down for some work, and I got hounded by a group of boys who started calling me Shikhandi. Oh. And I was damn scared कि now my abuse is going to happen. It didn't happen fortunately, but then you know, even that I was like not even 10 years maybe at that time, but for me that memory still remains. So the media portrayal of characters and how people take it up, you know, has a huge impact on our lives. And now, as you mentioned, ki in our society where we have mythological references, you know, and also cultural references in other religions, कि हमारा समाज फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, बट ये एक डबल एज स्वॉर्ड है. इन द सेंस कि अगर हम उस रेफरेंस को लेके कहते हैं कि ट्रांस पीपल को एक्सेप्ट करना चाहिए, देन व्हाट हैपेंस इज एनीथिंग हु इज़ बियॉन्ड दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेड. सो कहीं ना कहीं जो हमारे किन्नर समाज के लोग हैं उनको मान्यता मिल जाती है कि भाई क्योंकि हाँ एक माइथोलॉजिकल रेफरेंस है उसके लिए, लेकिन कोई कहे कि मैं नॉन बाइनरी हूँ या कोई कहे कि मैं गे हूँ, तो वो सारा वेस्टर्न हो जाता है, एंड किन्नर हिजड़ा समाज जो है वो इंडियन हो जाता है. एंड कहीं ना कहीं यही अनफॉर्चुनेटली हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसी में भी ट्रिकल डाउन हो गया, because of, you know, their closeness to the Indian mythology, कि who are, अब आजकल हम बात करने लगे हैं ट्रू ट्रांसजेंडर एंड फॉल्स ट्रांसजेंडर की. Okay. हम बात करने लगे हैं हिंदू ट्रांसजेंडर वर्सेस मुस्लिम ट्रांसजेंडर की. आपने सुना होगा कि कुछ आपस में लड़ाई भी चल रही है इंदौर में, अगर आप न्यूज़ पढ़ें तो. बट यू नो, दिस इज़ हाउ माइथोलॉजी, पॉलिटिक्स, कल्चर, इन सब का जो मिक्सचर होके थिंग्स कैन गो वेरी हेवायर. सो इट्स गुड दैट वी हैव दोज माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस, बट देन वी ऑल्सो नीड टू नॉट स्टॉप एट देम. Right, but at least it Yeah. can be a starting point. If Yes. not, it cannot be the whole picture. Yes. But And similarly, you know what happened is like लोग उसको एज अ प्राइड के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं. आई रिमेंबर दैट आई वेंट टू अ गवर्नमेंट ऑफिसर वन टाइम हु वाज द नोडल पर्सन लुकिंग एट ट्रांसजेंडर वेलफेयर, एंड ही स्टार्टेड गिविंग मी अ लेक्चर कि किस तरह से हमने तो हमेशा से ट्रांसजेंडर लोगों को बहुत इज्जत दी अपने समाज में. वो तो ब्रिटिश ने आके काम ख़राब कर दिया कि उन्होंने वो कानून ले आए एंड यू नो सेक्शन ले आया, एंड बट हमने तो हमेशा ट्रांस व्यक्तियों को बहुत मान्यता दी. मुग़लों ने बहुत मान्यता दी कि उन्होंने अपने हैरम में उनको यू नो एज अ वीमेंस हैरम में गार्ड रखा था. दे वर पार्ट ऑफ द कोर्ट्स, दे कुड गो टू द एम्परर्स कोर्ट एंड ऑल दैट. सो मैंने उनसे बस इतना सवाल पूछा, तो फिर मतलब क्या उस ज़माने में उनको सब काम करने की इजाज़त थी? तो नहीं थी, क्योंकि हमारा एक कास्ट सिस्टम वाला समाज था जहाँ हर एक के लिए रोल फिक्स्ड है. तो एक ट्रांसजेंडर का ये रोल ठीक था कि भाई तुम जाके शादियों में नाच सकते हो, बधाई दे सकते हो, बस्ती वाला काम कर सकते हो. लेकिन आज की भी डेट में अगर वो हिजड़ा व्यक्ति का है कि मुझे ड्राइवर की नौकरी दो, मुझे स्कूल टीचर बनना है. वी रिसेंटली हैड अ केस जैन कौशिक वाला, जिसमें उनको वो स्कूल टीचर बनना चाह रही थी, 2 स्कूल ने उनको निकाल दिया बिकॉज शी इज़ ट्रांसजेंडर वुमन.
तो हम एक तरफ एक चीज़ को तो एक्सेप्ट करते हैं कि आप इस प्रोफेशन में ठीक हो, आप ब्यूटिशियन बन जाओ, यू नो, आप डांसर बन जाओ, आप ये कर लो, लेकिन वहीं आप अगर वो आपके टीचर बन जाते हैं तो क्या आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? वो आपके डॉक्टर बन जाते हैं, यू नो, क्या वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो आप एक्सेप्ट करेंगे? हमारे देश में आज तक कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ट्रांसजेंडर व्यक्ति नहीं बना। तो ये हमें सोचना होगा थोड़ा सा दायरा एक्सपांड करते हुए कि एक्सेप्टेंस डज नॉट मीन एक्सेप्टेंस एज पर माय टर्म्स एंड कंडीशन। ऑफ कोर्स, कि इस प्रोफेशन में ही हम आपको एक्सेप्ट करेंगे, इस रोल में ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपके लिए कोई रोल नहीं है समाज में, तो देन दैट इज़ नॉट ट्रू एक्सेप्टेंस। तो वो हमारी बात बीच में छूट गई थी और हम पूरे उस साइकिल में वापस आ गए, ट्रांजिशन और एक्सेप्टेंस को लेके। तो फाइनली जब ट्रांजिशन हुआ तो अब आपकी फैमिली ने एक्सेप्ट किया है? यू नो, आई ऑलवेज से दिस कि ये जो वर्ड्स हैं ट्रांजिशन एंड एक्सेप्टेंस, दे आर नॉट लाइक एंड पॉइंट्स, दे आर ऑन अ स्पेक्ट्रम। सो जब लोग कहते हैं अब आपका ट्रांजिशन हो गया, आई एम स्टिल ट्रांजिशनिंग, यू नो, एंड इट्स अ लाइफ लॉन्ग थिंग, यू आर इवॉल्विंग ऑल्सो एज अ ट्रांसजेंडर पर्सन. And same happens with acceptance also, that you are constantly evolving, you know, in accepting people who are different from you. And the same thing is also happening with my family. You know, they weren't prepared to have a person in the family जो कि एक out and proud transgender woman है, but अब हैं, and they are accepting, they are embracing, they are also proud of me. In fact, my mother, she's staying with me. And we both have a lot of love amongst us now, and it's really glad to see that, you know, that cycle has now come back, where we are back in that whole relation. And I also say this to a lot of young trans and queer people as a message of hope ki, you know, it may take time, How but just many hold years on. did it take you? It took me मैं कहता हूँ 14 साल का वनवास. So yeah, so when I first told them I was 20, and when I started transitioning I was 34. So 14 years was that struggle where I have placed my case but no progress. And So it may take that long. it may take sometimes even lifelong, but you know, I always say this कि चाहे जितनी भी मुश्किल हो, life is worth living. In fact, Nice. today morning I was thinking about writing this, but maybe I'll speak this on a podcast rather writing this, is that once, you know, I took a walk. I love taking walks, and I was sweaty, exhausted, but of course it feels nice. And I came back and I made nimbu pani. You know, some very nice, tangy, sweet, salty nimbu pani with black salt and chilled ice cubes and everything, and I had it. And that joy, that after a lot of exhaustion, pain, you know, you get that thing, that tripti jo aapko milti hai, you know, that joy is something beautiful. So every time I think that my life is not worth living, I think of that nimbu pani. That's a very nice way to put it. कि you know, life may be very hard and it will be very difficult, but at the end you will find some solace. And even if you don't find some solace, just going through this experience, you know, makes life worth living. Because I work on suicide prevention, so Yeah, right. I say this often कि चाहे जितनी भी मुश्किल हो, चाहे जितना भी हो, there's always hope. Because I have gone through that phase and I know कि लगता है कि नहीं है कोई रास्ता, बिल्कुल dead end है, कोई hope नहीं है, कोई नहीं समझेगा. But tomorrow will be different. You know, tomorrow there may be hope. Tomorrow maybe someone will be there with you and they will understand. So just one day at a time. That at least, you know, the satisfaction ki at least you fought, you tried. Yeah, absolutely. And trust me, you'll be so proud of yourself when you look back at my journey, you know. I always say this ki shayad if I had not transitioned versus now, I'm so proud of myself. वो जो लाइन है ना जब मेट की कि मैं अपनी फेवरेट हूँ तो मैं तो पक्का अपनी फेवरेट हूँ. That's the coolest thing I've Yeah. heard in a while from someone. And when we अभी जब भी met की आपने बात बोली तो I have to ये OTT, you know, and movies, cinema. So cinema में we have seen बहुत ही caricaturish, cliched versions of transgender people की कुछ है तो वो बस नाच रहे हैं या ट्रेन सिग्नल पे आपको दिखेंगे, ये इसी तरह का. और अभी कुछ हाल ही में मूवीज़ आई थी, एक जो बिल्कुल आपके से रिलेट करता है,
इन द मूवी जिसमें आयुष्मान है और वानी शी चंडीगढ़ करे आशिकी। हाँ, आपको नाम भी पता। हैव यू वॉच्ड दैट Yes, I मूवी? watched. तो मैं बिल्कुल अभी आपसे बात करते हुए वो सीन्स उस मूवी के आ रहे थे मेरे दिमाग में। हालांकि उसमें बहुत ही सिंपल दिखाया कि अच्छा फाइनली वो बीमार हो जाते हैं और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट इज इट दैट इजी? Well, of course, life is not like movie, but yeah, movies are also a part of life, you know. So, in fact, it is my area of research to look at how trans people are portrayed in media, Right. including films and OTT. So, I've studied and watched a lot of movies, and Which is your favorite? there is a short film called A Monsoon Date, Okay. which is also written by a transgender woman, Ghazal Dhaliwal, the same person I was speaking of, and it's portrayed by Konkona. And it's a short film and very sensitive and talks about the experience of dating by a trans woman, you know, and how that turns out when she tells the person she's dating that she's trans woman. So that's like very nicely and beautifully done, and that is why we need more trans people behind the camera, in front of the camera, as actors and also as writers. So Chandigarh Kare Aashiki, you know, I'm a big Ayushmann Khurrana fan, but Me too. in spite of that, I think they needed more people to be involved in making that film. Because of course it's a commercial masala film at the end of the day, and I've spoken to a lot of directors, writers, actors on what are their, you know, compulsions. आपकी Because बात they are, करी I've उनसे। spoken to them, and a lot of them are very well meaning. In fact, वो बनाते ही इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि ये सेक्शन की कहानी आनी चाहिए. इनफैक्ट आजकल हर OTT में आपको कहीं ना कहीं एक Yes. क्वेयर कैरेक्टर मिल ही जाएगा, है ना. तो उनकी नीयत तो अच्छी है, you know, नीयत पे कोई डाउट नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूशन एंड द कंपल्शंस ऑफ द मीडिया, you know, somehow things get very wrong over there, and the wrong portrayal and caricatures. But I'm very happy that a lot of trans people or non-binary people are now becoming script writers, directors, actors. They are. So like Ghazal Dhaliwal is a you know, script writer. She also has written Mismatched or Ek Ladki Ko Dekha To Aisa Laga. She and was anyways first of the yes, spear my headers. inspiration. Yeah. You know, then Or you know, more recently, are there more people? yes, there is also Faraz, who is a filmmaker. There is also Trinetra, who was there in Made in Heavens. She's a trans woman Right, doctor. right. So there are some, you know, good spots of good portrayal also, but then there are also a lot many. And in fact, there is a lot of question ki why should cis women be playing the role of you know, trans women, like Vani Kapoor ke upar. Yeah, even Sushmita Sen when she played the Tali. role in Tali, right? So these are the questions that we need to ask. Ki why are there no good trans actors then? You know, why is there a compulsion to take Sushmita even for a story which is on trans women? So yes, I think cinema is evolving with the society, but yeah, a lot of progress needs to be made because it has huge impact. इतना मतलब उसका Yeah. इम्पैक्ट है कि Yes. वो ऐसे बताने से इट्स बेटर है कि इफ यू Yes. ब्रिंग इट थ्रू अ मूवी, लाइक नवाजुद्दीन प्लेड वो हड्डी. हड्डी में, yes. That was a bit scary. I mean, I just saw the promo. मुझे वही बहुत scary लगा. So do you think, you know, that So side there have of been it other also? movies like, you know, Lakshmi Bomb, Lakshmi Bomb. and you know, where it's shown as a bit scary, and then you know, they have their own justifications on why it's portrayed, and fine with them. There's also their liberty to do it. But is there a side of this violence and dark, you know, ऐसा ये भी है? देखिए, हम सब इसी समाज का हिस्सा है, तो नेचुरली ऐसे नहीं है कि सारे ट्रांसजेंडर लोग फरिश्ता हैं. तो हैं भी, उसमें भी मर्डरर्स, क्रिमिनल, सारे किस्म के आपको लोग मिलेंगे. बट देन व्हाट हैपेंस इज, यू नो, व्हेन यू पोर्ट्रे अ कम्युनिटी इन अ सर्टेन मैनर, तो वो एक स्टीरियोटाइप बन जाता है. जैसे अगर हमें कोई टेररिस्ट दिखाना है तो उसे हम दाढ़ी वाला, टोपी वाला, सुरमा लगाया हुआ, यू नो, एक मुस्लिम कैरेक्टर दिखा देते हैं. नाउ बट देन दैट हैज़ implications on lives of the people, right? Similarly, when as a trans person, before I enter, my stereotypes enter the room. कि दे आर लाइक, ओ आई नो हाउ ट्रांस पीपल आर. अच्छा, कैसे पता आपको? तो हमने मूवी देखी है चंडीगढ़ करे आशिकी.
So, now we are coming almost to the end of this, beautiful journey that you have carved out for us. इसमें पेरेंट्स का रोल अभी तक जो मुझे समझ आया है सबसे इम्पोर्टेंट है बिकॉज व्हेन यू आर अ चाइल्ड देयर इज नो अदर सपोर्ट सिस्टम एक्सेप्ट फॉर पेरेंट्स सो बिकॉज आई नो समवन आई नो ऑफ समवन to be correct, a boy, he's a kid, and he dresses up like a girl and he dances to those moves, very nice and very, very feminine. So his parents get very embarrassed when he does it in front of guests or maybe in society functions, and they are very well off, and it's not like, very good people. So, this embarrassment, now he's a kid, but he also feels and understands some bit of it, right? So, do you think parents को अभी भी एक तो even well educated, well earning parents को नहीं पता है कैसे deal करना है? And what is the way that they can help, their own children if they have, this kind of personality to live normally, to grow as normal individuals? Yeah, I want to second that अगर ट्रांसजेंडर बच्चों के एक अच्छे इनोसेंट चाइल्डहुड बना रहे उसमें सबसे ज़्यादा रोल तो पेरेंट्स का ही है, उसे एक अच्छा बनाने का या उसे एक टॉर्चर बनाने का. सो दे कैन मेक एंड ब्रेक योर चाइल्डहुड. And I also say this, that a lot of parents are well-meaning parents. They love their kids, they want the best for their kids. But unfortunately, we have not trained them. In fact, no one trains them to become parents. But no one trains them to become parents of a trans child or a disabled child or an autistic child, for example. And therefore, it's a difficult journey. एंड वहाँ पे हम सारी जिम्मेदारी पेरेंट्स के शोल्डर पे नहीं रख सकते हैं कि भाई आपने जन्म दिया तो आप ही को पालना है. बिकॉज वो कहावत है ना, इट टेक्स एन एंटायर विलेज to raise a child. So similarly, to raise a transgender child, we need maybe more than one village. And एक social responsibility भी हमारी है. तो जब हम फिल्म बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल फिल्म की बात हो रही थी, तो हमें ये भी सोचना है कि जब ये फिल्म एक ट्रांसजेंडर बच्चा देख रहा होगा या उसके पेरेंट्स देख रहे होंगे, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट है. या वो बच्चा जब स्कूल जा रहा है तब उसके बैचमेट्स ने भी फिल्म देखी है, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट है, क्या वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा या नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा. सो दोज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. बट आई थिंक फॉर पेरेंट्स इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि if they have a child who is a trans child, you need to, or any other child who is different from the usual children, you need to accept them. I always say this कि ये गार्डन है आपका जिसमें अलग अलग किस्म के फूल हैं, कोई सफ़ेद है, कोई नीला है, बट है वो सारे आप ही के, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट देम एज दे आर. एंड योर रोल एज पेरेंट्स इज़ टू जस्ट नर्चर देम एंड लीव देम इन दिस वर्ल्ड. जैसे खलील गिबरान ने अपनी पोइट्री में कहा था कि एज पेरेंट्स you are not really the owners of your children. You have to raise them, and support them. That is your role. And after that, you have to leave them to be who they are and who they want to be there. I think in parenting, one thing is very important is to allow your children to make mistakes. प्रॉब्लम ये है कि वो इसलिए नहीं रोक रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि कोई इश्यू, उनको लग रहा है वो बच्चा गलत काम कर रहा है, उनको लग रहा है वो सही है रोकने में. लेकिन द ट्रू इंडिपेंडेंस इज अलाउइंग योर चिल्ड्रन टू मेक मिस्टेक्स बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट. स्पेशली व्हेन आई से मोर देन 18+ भी हम बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं. इंडिया में तो भी है ऐसा. So if you are not allowing them to explore, if you're not allowing them to make mistakes, learn from those mistakes, तो आप ही उनके decision अगर सारे लेते रहोगे, so then they can never really become true wholesome, adults or human beings. So उनका एक वहाँ बहुत important role है. And just because a child is dancing like a girl does not mean कि वो transgender child है. So there is a lot of gender variation which is there, and you just have to allow them to explore, and then once they are old enough to understand their gender or their sexuality, they will come, and then you must support them to become the best version of themselves. That's our role as parents or as partners or as friends or anything that way, because हम सबका एक बहुत unique trajectory of life hai. So it's equally difficult for parents also to, when you see your child behaving in a different way than what is societally or whatever naturally accepted.
So even they need that help and support. That's And I think all parents need, not just only parents True, of true. transgender children, but all parents need that help because I have seen, like for example, हम student suicide की भी बात कर रहे होते हैं, तो the parents of the students who have died by suicide, उनके लिए तो वो बहुत ही लाइफ लॉन्ग एक Trauma. पेन एंड ट्रॉमा रह जाता है, स्पेशली फॉर द गिल्ट जो उनको होता है कि हम कहाँ फेल हो गए एज पेरेंट्स. वाई कुडंट वी सेव आवर चाइल्ड इन टाइम, हमें क्यों नहीं पता लगा, हमें क्यों नहीं हुआ. तो जहाँ आप एज पेरेंट की जगह जज बन जाओगे तो बच्चे आपके पास कभी ओपन अप नहीं करेंगे. सो अंटिल अनलेस यू आर ओपन टू लिसन टू एनी शिट दैट चिल्ड्रन ब्रिंग टू यू और एनीथिंग जो आपके वैल्यूज़ एंड फिलॉसफीज़ के अगेंस्ट हो, जब तक आप वो भी सुनने के लिए रेडी ना हो तो बच्चे कैसे आके आपके पास ओपन हो सकते हैं. So yes, parents have to do a lot of introspection also because सिर्फ कानून चेंज करने से या वॉशरूम बनाने से ये चीज़ नहीं चेंज हो सकती. So a lot of work for all of us to do that. बहुत important बात बोली आपने कि open to listening. On anything, On anything, yeah. I say this, that if I have a child and if they have done a murder, I'll say you can still come and tell me that you have murdered someone. I'll only take you to the police station and get you arrested, but you can still come and tell me that. You have that kind of trust Yeah. and confidence, in your parents. That nothing is taboo. Nothing is taboo. Nothing is That taboo. important. Yeah, anything you have done, you want to speak of, you can speak. So, at this moment, one message that you want to share with your fellow community, students, also transgender persons, their families, and other people who have to still accept them. For the people who are there, I mean the trans and the queer people, उनके लिए तो मेरा हमेशा से यही मैसेज रहा है कि you have to first accept yourself. You have to be kind to yourself. You have to love yourself. I mean, ये बहुत cliched sound कर रहा होगा, loving yourself and all that thing. But then that is important because a lot of phobia, fear and hatred that we have is for ourselves. I know that I've spent a lot of time, thinking कि मेरी क्या गलती है या मेरा क्या गुनाह है, in being who I am. So most importantly is unconditional acceptance of your own self. And if you can't accept yourself, how are you expecting anyone else to accept you? And for the people, especially family members and other people who are there, you need to understand ki your life is your life, their life is their life. Your job is to support them, but at the end of the day, you have to understand ki they are independent human beings and leave them, allow them to live their life. That's very important. मेरे एक सबसे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर जो मिस हो गया वो है गवर्नमेंट. Government, yes, please. Because I may lose hope in myself. None of the people may support me, and when I am totally destitute in that manner, the only support is in the state. So बहुत important role है गवर्नमेंट का to provide the support to everyone who is rejected from every place. चाहे उन्हें फैमिली से रिजेक्ट हो गया, चाहे बिल्कुल. कुछ And भी हो. judiciary and government has a very strong role to play in that, which I think they have failed to do so far, and that's where they need to really come in now. That's very important. I hope some people watch. Some people in the government also watch this. We'll make them watch. I'm so happy to listen to that. And please, one line for our viewers. Please, if you can tell them to watch, like, and subscribe, and watch it completely, like till the end. Yeah, sure. I mean, मैं ये कहूँगी कि जो क्लाइमैक्स उसे मिस मत करिए because there's a lot more fun in the climax. So yeah, please do watch, like, subscribe, comment also, and only comments full of love on TDM Manthan, and do watch other episodes also, and hopefully Vatsala will call me back for a second time and then you can watch me again. And thank you so much for saying that. So guys, you heard Dr. Aqsa Sheikh. Please watch, like, and subscribe our video, and you can watch other videos as well. So please do that. Thank you so much, ma'am. Thank for you, being thank with you. us It's and my sharing pleasure. and Yeah. opening up with us. Thank you. you.